He has been the founder vice chancellor of Maharshi University of Information Technology, Lucknow, Uttar Pradesh. He has been gold medalist of BCom and MCom in University of Allahabad in the year 1982 and 1984 respectively. After qualifying NET, he has been awarded for JRF from UGC. He joined academic profession in the year 1986. He has contributed to the academic fraternity for 34 years. He has served as lecturer to Gorakhpur University, Gorakhpur, Uttar Pradesh, reader to University of Allahabad, Prayagraj, Uttar Pradesh, head of Business Management Department, Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University, Prayagraj, Uttar Pradesh, before joining Banaras Hindu University as professor in the year 2006. He has written 19 popular text reference books, out of which 3 have been awarded as best books by AICTE New Delhi. He is author of more than 50 quality research papers to the journals of national and international repute. Over 20 distinguished scholars have been obtained their PhD degree under his supervision, and he has completed the major research projects of UGC New Delhi. He has organized various national and international conferences, seminars, webinars, and workshops. In addition of a fusion of qualitative and quantitative aspects in the field of teaching and research, he has been versatile corporate trainer, consultant, and administrator. He has been expert member of numerous boards of studies and selection committees of different renowned universities. He is a voracious reader of, and his book reviews have appeared in many academic journals. He runs blog on contemporary issues, book reviews, and poetry. He has been the president of Indian Association for Management Development, managing editor of Indian Journal of Commerce, NCC officer to the rank of captain, program coordinator of NSS BHU, student advisor and program coordinator of MBA Financial Management. Dr. Singh has extensively traveled abroad for different academic activities. He has been a profound academician, motivational speaker, freelancer, and social activist, efficient in effective administrator of institutions of national repute. I have only means I don't have time to explain all his credentials. He is one of the most decorated academician in the field of commerce and management, and I don't think anybody who does not know about him. His name is very big, and we are blessed to have him with us in this program for inauguration. And I would like to invite Professor H.K. Singh sir to bless us for successful continuation of this program. Uh, Sir, please, mic is over to you, sir. Mic, sir. Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. My worthy student and the director of the Bhavadi Institute of Business Management, Dr. Sisir Pandey, Dr. Hari Om Gupta, Dr. Sailesh Divedi, and other academicians who are participating, whether as resource person or as participant in this workshop. I am feeling honored to welcome you all on behalf of Indian Association for Management Development, IAMD, which was started in the year 1969. At that time, I was only age of 7 years. Professor A.N. Agarwal, who was the founder director of Monirba, Motilal Nehru Institute of Research and Business Administration, University of Allahabad. He started this IAMD as a versatile platform for business administration and research. And
this IAMD is also publishing the Quarterly Journal of Management Development from 1969. It was my thinking that this type of professional associations must continue in this country as a linkage between academicians and practitioners. By the way, around 20 years back, somehow this IAMD was stopped. When I was the Vice Chancellor at Lucknow, I tried my best to restart the proceedings of this IAMD. And in this way, this IAMD came to my patronage, and we are trying our best to host certain academic events. Friends, at the outset, I would like to congratulate my worthy student, Dr. Sisir Pandey, for organizing this workshop on very relevant topic, research methodology. You are aware, now University Grants Commission has made mandatory the provision of classroom teaching on research methodology for the PhD scholars. At BHU, one paper of research methodology I am also teaching. And in this way, I'm trying my best to understand the foundations of this research methodology. At the outset, I would like to tell you, this PhD degree is such important degree that for your entire life, the word doctor is added. Otherwise, whether you are acquiring the MBA degree, MCOM degree, LLB degree, MBBS degree, or any other degree, never and ever there may be addition of any word like doctor. This PhD is addition of the word doctor to your name. But friends, it is a two-way traffic. Be sure, not only authority, responsibility and accountability is also added with this word doctor. Be sure about PhD. P means patience. H is hard work. And D is the dedication. If you are joining the PhD program, you must be ready for your serious element of patience, hard work, and dedication. Only then be sure this PhD degree will provide you everything, whatever you are having intention in the academic world. Friends, we are working to the academic scenario. And I provide you this word area, A-R-E-A. A is academic. We have to abide by the principles of being academicians. It's our production branch, factory, it's our marketing. If you want to survive and grow in the field of academics, you must coordinate your factory production with your marketing. आप नाराज न होना, कपड़ा होना और कपड़ा पहनने का हुनर होना दो अलग अलग चीजें हैं. It's factory. Few friends are having adequate knowledge, but they are not properly presenting their views. कपड़ा होना फैक्ट्री का मामला है, कपड़ा पहनने का हुनर होना ये मार्केटिंग का मामला है. आपके घर में किचन में जो खाना बनता है वो फैक्ट्री है, और आपकी मम्मी जो टेबल पे सर्व करती हैं वो मार्केटिंग है. आपकी मम्मी को आता है कि किस बच्चे की क्या टेस्ट है, उसके हिसाब से खाना को सर्व किया जाए. अगर आपको नमक अधिक चाहिए तो मम्मी आप वाले में नमक मिला दी, किसी में मसाला मिला दिया, किसी में तेल मिला दिया, हर एक को अपने इच्छा के हिसाब से भोजन मिल गया. I was simply focusing that academicians must coordinate the
factory with the marketing. The same is about research also, friends. You may be knowing a lot. Your depth of knowledge is quite, but you can't write in best form. But you can't express in right form. And therefore, academicians must think about developing the communication skill. जब तक कि आपको अच्छा लिखने और अच्छा बोलने नहीं आएगा, आप अच्छे एकेडमिशियन नहीं बन सकते। तो मैं आपको यह सचेत करना चाहूंगा, you coordinate your factory with the marketing for becoming, तो आपको अच्छा लिखने, अच्छा बोलने आ जाना चाहिए। ये बात रिसर्च में भी लागू है। तो पहला शब्द मैंने कहा आपको ए एकेडमिक, दूसरी बात है आर रिसर्च, मोस्ट रेलिवेंट थिंग इन एकेडमिक वर्ल्ड। यू विल इंप्रूव योर रिसर्च स्किल। PhD degree not the final destination. PhD degree is simply the legal sanction of doctorate. And then your journey starts of the becoming effective researcher. Nowadays, in the field of social sciences and business world, be sure research only means empirical research. And therefore, your topic should be such in which there must be proper potential of empirical evidences. आप ये जरूर ध्यान देंगे, इस तरह का शोध का टॉपिक होना चाहिए कि जिसमें प्राइमरी डेटा पे संभावनाएं बहुत बेहतर। आज के जमाने में अगर केवल सेकेंडरी डेटा बेस आप रिसर्च करेंगे तो आपकी महत्ता काफी घट जाती। I am hinting everyone that think about converting your research into empirical research. Therefore, primary data collection and not only collection, analysis with the help of certain mathematical tools. In present world, we people are applying various mathematical tools for the purpose of analysis. अच्छा रिसर्चर बनने के लिए मैं आपको दो ही बात कहूंगा। एक तो हमको आरएम आना चाहिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी आना चाहिए। शोध क्या है, शोध के प्रकार क्या हैं, कैसे हाइपोथेसिस बनाते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं। और दूसरी बात हमको आनी चाहिए सांख्यिकी विधियों का प्रयोग। नई पीढ़ी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के द्वारा बहुत से अच्छे अच्छे टूल यूज करती है। I am not criticizing anyone, but I am simply alerting you people. Just by applying the mathematical tools, you can't be the real empirical researcher. पहले हमको पता होना चाहिए वो टूल क्या है। अगर आपने यूज किया एनोवा तो आपको पता होना चाहिए एनोवा होता क्या है। तो कोई भी सांख्यिकी की सहज दर्जे की किताब आप ले लीजिए, एलिमेंट्री पोर्शन, रूडिमेंट्री पोर्शन हमको आ जाना चाहिए। कोरिलेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है, एनोवा क्या है, टी टेस्ट क्या है, जेड टेस्ट क्या है। अगर हम ये जानते रहेंगे तब उन टूल्स को अप्लाई करिए। आपकी उस गिवन कंडीशन में वो टूल फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। केवल कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को यूज करने से आप अच्छे एनालिस्ट नहीं बन पाएंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा अच्छे रिसर्चर बनने के लिए हम और आप ये सोचेंगे, एक तो एम्पिरिकल एविडेंस होना चाहिए। प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण होगा, प्राथमिक आंकड़ों का एनालिसिस होगा और हाइपोथेसिस को टेस्ट करके हम ऐसे कुछ प्रैग्मेटिक मेजर्स देंगे जो हम लोगों की विधा है सोशल साइंसेज, बिजनेस स्टडीज। आप पे जरूर ध्यान दीजिए कि हम इस तरह का रिसर्च करें जिससे कुछ हमको समस्याओं के समाधान की समझ आ जाए। I do hope you people will think about solving the problems. इस तरह के रिसर्च किए जाएं कि देश की, विश्व की समस्याओं को लेकर के हम कोई ना कोई। तो मैं शुरू किया था ए एकेडमिक, आर रिसर्च। तीसरी बात बड़ी जरूरी है ई एक्सटेंशन। मेरे बारे में हमारे विद्यार्थी सफल डायरेक्टर डॉक्टर शिशिर पांडे कुछ ज्यादा ही बता रहे थे। मैं तो केवल ये कहता हूं कि मुझे तो एक अच्छा अध्यापक बनने की ललक है। मैं पूरे जीवन लगा हुआ हूं एक अच्छा अध्यापक बन जाता। अभी तो बहुत कम कर पाया हूं, बहुत बाकी रह गया है।
तो उसी कड़ी में बताऊंगा आपसे एक्सटेंशन एक्टिविटीज। गुड टीचर्स आर नॉट कन्फाइंड टू द सर्टेन स्पेसिफिक बाउंड्रीज। अच्छा अध्यापक किसी एक सीमा के लिए नहीं है कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए केवल बनाऊं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय हमारी रोजी रोटी है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय हमारा एम्प्लॉयर है। बट एक्सटेंशन एक्टिविटीज, आज के जमाने में आप देखिए ऑनलाइन टीचिंग है, ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन रिसर्च है। अब तो हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। इस कोविड-19 ने हम लोग को ये मौका दे दिया है कि हिंदुस्तान के लोग अगर किसी कारण से ऑनलाइन टीचिंग में कुछ कमजोर थे तो हम और आप ये सीख जाए। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। अगर हम और आप लग जाएंगे तो सीखने में कोई समस्या नहीं आती। आप देखिए हिंदुस्तान का आदमी कितना बढ़िया काम कर रहा है ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन एजुकेशन में। आई एम वेरी मच श्योर इंडियंस आर द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स। भारतवर्ष के लोग सबसे बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पूरी दुनिया में आप पता लगा लीजिए, सबसे बढ़िया किस्म का अध्यापक, वकील, डॉक्टर, म्यूजिशियन, आई एम नॉट सेइंग आईटी हार्डवेयर, आई एम सेइंग आईटी सॉफ्टवेयर। पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ किस्म का इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, आईटी सॉफ्टवेयर भारत का है। आपका ही पता लगा लीजिए। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा वी शुड फोकस ऑन दिस ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन रिसर्च। बात बड़ी जरूरी है। एरिया मैंने बोला था आपको, एकेडमिक, रिसर्च, एक्सटेंशन एंड एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन है। बहुधा अच्छे अध्यापक कमजोर प्रशासक सिद्ध हो जाते हैं। हम और आप ध्यान देंगे, हम केवल असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए नहीं बने हैं। I will be competent head of department, competent dean, competent rector, competent vice chancellor, competent dean, competent principal, competent chief proctor. You must care about it. We are expecting that you will develop your administrative skills. And for us, AC doesn't mean air condition. For us, AC means any condition. कैसे भी हालात होंगे, हम उन हालातों में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समग्र प्रयास करते रहे। तो मैं आज आपसे यही गुजारिश करना चाह रहा था कि हमारे मित्र जो आज इस वर्कशॉप में जुड़े हुए हैं, वो ये प्रयास करेंगे अपने एरिया को डेवलप करने का, एकेडमिक, रिसर्च, एक्सटेंशन एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन। इन पे बहुत विस्तार में चर्चा होगी। रिसर्च का पहला काम शुरू होता है MBO। हमारे कॉमर्स मैनेजमेंट के विद्यार्थी जानते होंगे, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। रिसर्च वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। जो आप उद्देश्य बनाते हैं, उद्देश्य एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए। ये नहीं एक लंबी श्रृंखला बना दिया 25-30 की। अरे 3, 4, 5 अच्छे किस्म के प्रेगमेटिक, रियलिस्टिक, वास्तविक धरातल को देखते हुए आप ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। और वही तय करेगा कि जो रिसर्च में 3, 4, 5 साल आप लगाते हैं, उन्हीं उद्देश्यों पे चलना है, या शुरू में ही चिंतन कर लीजिए कि ये हमारा उद्देश्य हो। फ्रेंड्स, बी श्योर, नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग। Only objective decides what's the correct and what's the wrong. अगर मैं इस समय आपके सम्मुख बोल रहा हूं तो आप ये नहीं कह सकते कि HK सिंह का सदैव धर्म है ये बोलते रहे। अभी मुझे जो काम दिया गया, अभी जो मेरा उद्देश्य है, उसके हिसाब से आप देखिए मैं बोल रहा हूं। प्रेजेंटली इट्स माय ऑब्जेक्टिव, मैं उसके हिसाब से कार्य कर रहा हूं। अब यही HK सिंह अपनी माता पिता के, मेरे माता पिता अब है नहीं, लेकिन अगर मैं जाता हूं वहां जाके मैं भाषण नहीं देता, वहां मुझे कुछ और कार्य करने होते, वहां उद्देश्य बदल गया। यू कांट से HK सिंह हैज ऑलवेज टू टीच। आप रिसर्च के बारे में भी जान लीजिए, आप कॉन्क्रीट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे और उन्हीं से जुड़ता हुआ आपका हाइपोथेसिस, कवरेज, टूल्स, एनालिसिस सब चलता जाएगा। तो मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, जब भी आप ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करिए, आपका अप्रोच सदैव सदैव होना चाहिए रियलिस्टिक, बेस्ड ऑन द ग्राउंड फैक्ट्स। अनावश्यक हाइपोथेटिकल बातों को लेकर के बहुत ज्यादा आनंद नहीं आता।
तो जो उन उद्देश्यों का सृजन करिए, उन्हीं उद्देश्यों के हिसाब से। मैं तो पूछता हूँ, जब पीएचडी थीसिस के बाद इंटरव्यू वाइवा में जाता हूँ तो पूछता हूँ, बताइए भाई क्या ऑब्जेक्टिव थे। बच्चा शुरू हो जाता है, ये ऑब्जेक्टिव फिल करता हूँ, बताइए ऑब्जेक्टिव नंबर 2 के हिसाब। आप ये समझिए, जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव्स, उसी के हिसाब से आपके बन लगते हैं हाइपोथेसिस, उसी के हिसाब से टूल्स, उसी के हिसाब से वेरिएबल्स, उसी के हिसाब से एनालिसिस, अंत में फाइंडिंग्स। मैं एक बिंदु और रखना चाहता हूं आपके सम्मुख। बी श्योर रिसर्च वर्क रिलेट्स टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यह सेंटेंस स्वयं में बहुत बड़ी बातें करता है। रिसर्च वर्क रिलेट्स टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों से जुड़ा हुआ है। पहली बात मैंने कहा पास्ट से जुड़ा हुआ है। आप ये कभी न कल्पना कर लीजिए कि जो आपने शीर्षक लिया है एकदम अनूठा है, एकदम अनोखा है, ऐसा तो किसी ने काम किया ही नहीं। औरों ने भी काम किया, उससे जुड़े हुए बिंदुओं पे लोगों ने काम किया है। आपके थीसिस का पहला चैप्टर तो ठीक है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा चैप्टर निश्चित रूप से होगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जिसको मैं कह रहा हूं रिसर्च वर्क लेट्स। पहले भी लोगों ने काम किया है तो उसको आप मेंशन करेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर। कई महीने समय लगाइएगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर काम किया है। अब तो आजकल ऑनलाइन के हम तो बहुत खोजते थे, बहुत दिक्कत होती थी। अब तो आप ऑनलाइन भी खोज सकते हैं। जो आपके टॉपिक से जुड़ता हुआ पुस्तक है, जर्नल्स है, मैगजीन्स है, थीसिस है, उनको आप इकट्ठा करिए, उनको पढ़िए और उसमें देखिए कि उन लोगों ने क्या स्टडी किया है। केवल ये मेंशन नहीं हो जाना चाहिए कि फला हमने रेफर कर दिया। आपको देखना चाहिए कि उस व्यक्ति ने जो स्टडी किया और उसमें क्या क्या चीजें छूट गई हैं। तो मैं जो आपसे चर्चा कर रहा था, रिसर्च वर्क लेट्स टू द पास्ट, इट मींस द ब्रॉडर कवरेज शुड बी ऑन रिव्यू ऑफ लिटरेचर। उस रिव्यू ऑफ लिटरेचर से ही निकलता है मिसिंग लिंक्स। आप नाराज न होना, आजकल के राजनेता भाषण में कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मुझे सब कुछ करना है। इज इट पॉसिबल दैट द एंटायर कंट्री वाज रन विदाउट एनी डेवलपमेंट? 70 साल में भी कुछ हुआ होगा। आई एग्री, सर्टेन मिसिंग लिंक्स वेयर देयर। जो चीजें बाकी रह गई थी उन पे ध्यान दिया जाएगा, वो कार्य होंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, आप उसमें ये देखेंगे कहां कहां पे अध्ययन नहीं हो पाया, क्या क्या चीजें छूट गई, मिसिंग लिंक्स क्या है, जिन पे काम नहीं हुआ है अब उन पे हम काम करें। अगली बात मैं कह रहा हूं, रिसर्च वर्क आल्सो लेड टू द प्रेजेंट। जो काम हो गया है अब उसके आगे मेरा काम। दूसरा चैप्टर आपका हो चुका है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर वो आपके काम। आप डेटा इकट्ठा करेंगे, क्वेश्चनर बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे, इंटरव्यू करेंगे। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप जरूर जरूर ध्यान दीजिए। इन प्रेजेंट वर्क, इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, रिसर्च मीन्स एम्पिरिकल रिसर्च। हम प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रण पे, संग्रहण पे, उनके विश्लेषण पे अगर ध्यान देंगे तो हमारे आपके रिसर्च की महत्ता बढ़ने लगेगी। मैं आपकी अनुमति से एक फैक्ट रखना चाहता हूं। आवर एक्स एचआरडी मिनिस्टर प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी, he was working with us at University of Allahabad. What was his observation? That in our country, in India, not 1%, 0.1% researches are acceptable to the global world. 1% का मतलब होता है 100 में एक, 0.1% का मतलब हुआ 1000 में एक। मैं मान लेता हूं, चूंकि वो पहले कहा करते थे, पहले एचआरडी मिनिस्टर थे, काफी वक्त गुजर गया है, हमारी नई पीढ़ी ने काफी हद तक बदला है। पहले के मित्र तो लिखते थे ऐसे और कहते थे यही थीसिस है।
राइटिंग द एसे नॉट द रिसर्च। लिखते थे आर्टिकल और बोलते थे रिसर्च पेपर। राइटिंग द एसे, राइटिंग द आर्टिकल इज नॉट द रिसर्च पेपर। तो ये उनका एक ऑब्जर्वेशन था कि साहब 1000 में एक हमारे रिसर्चेज की ग्लोबल लेवल पे मान्यता मिलती है। यही दोष था, क्योंकि हम लोग एम्पिरिकल पे थोड़ा कम जाते थे। खैर हमारी नई पीढ़ी बहुत मेहनत कर रही है। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो दिशा निर्देश दिया, जिस तरह सब सॉफ्टवेयर लगाया जाता है, आप जो थीसिस जमा करते हैं उसकी भी सॉफ्टवेयर से चेकिंग कर दी जाती है, काफी हद तक नई पीढ़ी ने रिसर्च के स्वरूप, कलेवर और प्रस्तुतिकरण को बदला है। आई मस्ट पुट ऑन रिकॉर्ड that the new generation is putting serious emphasis on this research culture. And in our country, we should put emphasis on developing the research culture, especially the higher educational institutions must focus on research culture. आप सुनते होंगे ये आलोचना होती है, विश्वविद्यालय गिने जाते हैं तो हमारे भारत का कोई as a teacher we are good. अगर हम अपने रिसर्च वाले पार्ट को थोड़ा ठीक कर ले जाएं तो मुझे लगता है जल्दी हो बेस्ट एजुकेशनल रैंकिंग। मैं चाहता हूं यह व्यवस्था अब शुरू होनी चाहिए, केवल एजुकेशनल रैंकिंग नहीं, वैल्यू बेस्ड एजुकेशनल रैंकिंग उच्च शिक्षा संस्थानों में होनी चाहिए। केवल शिक्षा नहीं, मूल्य आधारित शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा, और जिसके बारे में हमारे देश के नालंदा तक्षशिला के विश्वविद्यालय अग्रणी रहे हैं। जब से ये ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड का पैटर्न आया तब से व्यवस्था बिगड़ी। ये तो जो नालंदा विश्वविद्यालय में आके देखिए हमारे यहाँ गुरुकुल की व्यवस्था कितनी उत्तम है। शिशिर पांडे साहब बूढ़े हो जाएं, लेकिन मेरे लिए वही नवीन विद्यार्थी। हम लोग गुरु शिष्य की परंपरा से निकले हुए लोग। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा था दैट रिसर्च वर्क रिलेट्स टू पास्ट। अगली बात मैंने कहा आपसे प्रेजेंट। अब आप काम करेंगे, 3rd 4th 5th चैप्टर बनाएंगे। इट ऑल्सो रिलेट्स टू द फ्यूचर। जो अंतिम चैप्टर का अंतिम पन्ना होगा जिसको आप जरूर लिखेंगे, फ्यूचर। फर्दर इसको limitation. You must have mentioned into your thesis and synopsis that what were the serious limitations, and according to limitations you will develop the further scope of study. तो आप बताएंगे कि जब आप सुपरवाइजर बनेंगे, अगर आपको आगे काम करने कराने का मौका मिलेगा तो किन किन बिंदुओं पे आप काम करना चाहेंगे। ये आपकी स्टडी भारतवर्ष के लिए हो सकती है, ग्लोबल लेवल पे हो सकती है, कंपैरिजन हो सकता है, बड़े डेटा का हो सकता है, बड़े यूनिवर्स का हो सकता है। तो आप इसको भी मेंशन करेंगे, फर्दर स्कोप ऑफ स्टडी। है और सीखना है और सीखना है। आशा जागृत हो गई तो हमारा यह वर्कशॉप सफल माना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपको शोध की सारी प्रविधि सिखा देंगे। It's not possible for us to train all the techniques and methodology of the research, but simply we are initiating the process. हम वो प्रक्रिया शुरू विद्यार्थी कंप्यूटर से लिखता है और लिखता चला जाता है। हम जिस पीढ़ी के हैं, हम लोग
ends, I am suggesting everyone, if you will write by your own pen, your own mind, be sure कोई आप पर प्लेगरिज्म का, कोई धोखाधड़ी का कोई मुकदमा नहीं कर, तब तो आपकी कलम है, आपकी सोच है, आपका प्रस्तुतिकरण है। जो यह कंप्यूटर है ना, ये सिखलाता है कट एंड पेस्ट, यहां से काटा वहां पे जोड़ा। अगर आप कहीं इस चक्कर में फंस गए तो बड़ी दिक्कत आती है। आजकल तमाम सॉफ्टवेयर जो पकड़ ये आपके थीसिस का एक पन्ना, एक टेबल, एक कोई ग्राफ, एक कोई डायग्राम ऐसा मिल गया और आपने कहीं लिखा भी नहीं है कि कहां से लिया है। I think Professor H.K. Singh sir is disconnected. Call करके hmm? Sheshir, am I audible? Yes sir, yes sir. Actually there was some network problem. Yeah. तो मैं कंक्लूड करूं? Sure sir, sure sir. अच्छा, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि तकरीबन आधा घंटे का उद्बोधन होना है, तो उस हिसाब से अपनी बात को रख रहा था। टाइम आपका सर कोई लिमिट नहीं है सर, अरे नहीं, है जितना दे सके हम तो पाएंगे। आप ये नियम जान लीजिए, मुझको जहां पर जो समय मिलता है उससे 2 मिनट कम बोलता, क्योंकि तभी अच्छा रहता है। मैं आप सबको बधाई देता हूं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो मैंने देखा है, जिस तरह से प्लानिंग की गई है आपके इस कार्यक्रम की, इसमें तमाम रिसर्च के बिंदुओं पे बहुत अच्छे वक्ता आमंत्रित किए गए हैं। मैं आप सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। एंड आई डू होप that you will think about developing the culture of research, and not only culture of research but also contribution in the fields of research papers. You will write good research papers which are having citation index, H factor, and not only that, you will develop the culture of writing the books, reference books, test books in this country. I do hope my young friends who are linked online today, they will take the things into positive way. At some juncture, probably I became harsh. My purpose was simply to make you alert. I never intended to criticize anyone. It's not my intention. I never do it. But simply I provide certain remarks so that we can be alert for improving our skill. I'm very much sure that this particular program will develop the research culture in the new generation. This good research papers, and whenever you will become supervisor, you will focus on the empirical research. I congratulate everyone. Over to Shishir Pandey. Thank you sir, thank you very much. Now I would like to thank